హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎన్సీ లోకల్ న్యూస్. ఈరోజు మనం మరొక సరికొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు రాబోతున్నాం. ఈ వీడియో చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ వీడియో ఏంటి అనేది కూడా మీ అందరికీ చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ కూడా మీ అందరికీ చూపిస్తాం. మా వీడియో ప్రతి ఒక్కరూ చూడాలి. అలాగే అన్సబ్స్క్రైబర్లో చాలా మంది చూస్తున్నారు. సబ్స్క్రైబ్లో చూస్తే మేము కూడా మరింత ముందుకు వెళ్ళేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఎందుకంటే మేము చాలా కష్టపడుతూ వీడియోలు తీస్తున్నాం, కానీ చాలామంది అన్సబ్స్క్రైబర్లో మన ఛానల్ని చూడడం లేదు. సబ్స్క్రైబ్ చూసుకుంటే మనం కూడా ఇంకా గ్లౌత్గా ఇంకా జరిగే విషయాలన్నిటి కూడా మీ అందరికీ దృష్టికి తీసుకురావడానికి మేము ఇంకా ముందుకు ప్రయత్నిస్తాం. కొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చాం. ఈ వీడియో ఏంటంటే, గుజరాత్ నుండి వృద్ధ దంపతులు 75 ఏళ్ళు పైబడి 70 నుండి 75 ఏళ్ళ లోపు పైబడి ఉన్నారు. ఆ వృద్ధ దంపతులు గుజరాత్ నుండి పాదయాత్ర చేపట్టారు. ఆ పాదయాత్ర కూడా ఎక్కడి నుండి ఎక్కడి దాకా అంటే, గుజరాత్ నుండి ఉత్తరాఖండ్, మధ్యప్రదేశ్ మీదుగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మీదుగా తిరుమలకి చేరుకుంటూ తిరుమల నుండి వీరి పాదయాత్ర రామేశ్వరానికి వెళ్తున్నారు. ఈ రామేశ్వరం గుజరాత్ నుండి ఈ వృద్ధ దంపతులు 75 ఏళ్ళ వయసులో ఎందుకు వెళ్తున్నారు? ఈ గుజరాత్ నుండి రామేశ్వరానికి అంటే దాదాపు ఒక 4,000-5,000 కిలోమీటర్లు వస్తుంది. దాదాపు ఈ వృద్ధ దంపతులు అంత సాహసం ఎందుకు చేస్తున్నారు అనే దానిపై వారు ఈరోజు నల్లచెరువు చేరుకున్నారు. నల్లచెరువు చేరుకుని వారి వద్ద నుండినే మనం ఎందుకు వాళ్ళు ఈ వయసులో కూడా ఈ వృద్ధ దంపతులు ఈ వయసులో ఎందుకు వాళ్ళు పాదయాత్ర చేపడుతున్నారు? వాళ్ళని చూస్తుంటే చాలా వృద్ధులు అంటే అలా ఉన్నారు. అందుకు వాళ్ళు అలాగా వెళ్ళగలుగుతారని కూడా మనకి నమ్మకం కూడా లేదు. కానీ దేవుడు వాళ్ళకి ఇంత దూరం తీసుకొచ్చారు. వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ అనుకున్న కోరికను విజయవంతం కావాలని మనందరం కోరుకుందాం. అలాగే వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారనే దాని మీద కూడా మనం వాళ్ళ ద్వారానే అడిగి తెలుసుకుందాం. గుజరాత్ నుండి వచ్చినది వృద్ధ దంపతులు వీళ్ళు గుజరాత్ నుండి రామేశ్వరానికి వెళ్తున్నారు. గుజరాత్ నుండి వీళ్ళు తిరుమల, తిరుపతి దేవస్థానం దర్శించుకొని అనంతరం రామేశ్వరానికి చేరుకుంటారంట. వీళ్ళు దాదాపు 4 నెలల నుండి ఈ పాదయాత్ర చేరుకున్నారు. వాళ్ళు ఇప్పుడు నల్లచెరువుకు చేరుకున్నారు. నల్లచెరువు మన దేవరెడ్డిపల్లి బస్టాప్ వద్ద వీళ్ళని ఎందుకు వీళ్ళు రామేశ్వరానికి వెళ్తున్నారు, గుజరాత్ నుండి వృద్ధ దంపతులు ఈ వయసులో ఎందుకు ఇంత ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అనే దాని మీద వాళ్ళనే అడిగి తెలుసుకుంటూ మనం ఎన్సీ లోకల్ న్యూస్ మీ అందరికీ చూపిస్తుంది. नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार माँ, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम मेरा हिंदी तो माय हिंदी इज वेरी पुअर, इट्स नॉट ए ग्रामेटिकल, माय फ्लुएंसी इज नॉट ए स्मूथ, आई विल ट्राई माय बेस्ट इन हिंदी। हम लोग गुजरात के हैं, हरिद्वार गए, उत्तराखंड, हरिद्वार से गंगा जल लिए, अब तिरुमला, तिरुपति और रामेश्वरम दर्शन करके जलाभिषेक करके रिटर्न हुए। अब आप गुजरात से ये पादयात्रा पैदल पे चल रहे हैं, किस लिए चल रहे हैं? मेरी आंख में ऑपरेशन हुआ था। ओके। तो मेरी मिसिस ने बोला कि अगर अच्छा हो जाए तो हम पैदल यात्रा मेरे हस्बैंड को पैदल दर्शन को लाऊंगी। अब अच्छा हो गया तो चलो हो के दर्शन करके आ जाता हूँ। ये बोली मैं साथ में जाऊंगी, खाना बनाऊंगी, आपको हेल्प करूंगी, मेरी भी यात्रा हो जाए। फिर हम दोनों ये लगेज ट्रॉली बनाया, इसमें अपना दाल चावल बर्तन भांडे बिस्तर मिक्सिंग सब, और फिर चल पड़े। अब हम लोग जब सांगारेड्डी पहुंचे थे तो गुजरात से हरिद्वार ये सब दर्शन करते आए हम लोग। गुजरात से राजस्थान, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार से प्रयागराज, त्रिवेणी संगम, चित्रकूट, मैहर, आदिलाबाद होते तेलंगाना होते सांगारेड्डी होते यहाँ तक पहुँचे। 4,742 किलोमीटर हो गया। 4 महीना 27वां दिन है आज को। हाँ, और एक दिन में हम लोग 22-25 किलोमीटर हमारी जनरल एवरेज है, यानी 100 किलोमीटर में 4 दिन लगता है। यहाँ से रामेश्वरम जितना होगा मतलब इतना दिन और भी बढ़ जाएगा किलोमीटर। रही बात ये कि बोलते हैं कि एवरीथिंग प्रोवाइड फ्रॉम गॉड, एंड सो वी हैव आल्सो टू मच फेथ इन आवर गॉड, एंड सो we are trying to overcome with the God, because you see
food, life, protection, and everything provided from God. And one thing is that what is the purpose of human being is to realize of God. That is true, and so we are trying. Same like by the world. आप जो ये ट्रॉली किस लिए लेके आए उधर से गुजरात से लेके आए ट्रॉली ये बनाया, हाँ। ये पद यात्रा के लिए बनवाया। इसमें हाथ से बना के ले उधर से लेकर आ रहे हैं हाँ, गुजरात से हरिद्वार, हरिद्वार से यहाँ, क्योंकि अपना सामान सब इसमें डालना। तो खाने के लिए सभी चीज हाँ। खाने के लिए सोने के लिए बिस्तर, ओके नीड थिंग्स, एवरी नीड थिंग। हम्म। तो लगेज इतना उठा नहीं सकते, ये टोली बनाया और इसको लेके चल पड़े। आपकी कितना एज है 74 रनिंग है, मैडम का 72 रनिंग। 72 अभी इतना बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं क्योंकि तो 75 इयर्स में आप दोनों 75 इयर्स अब है इतना टाइम में इतना बहुत बढ़िया पद यात्रा कर रहे हैं If you will say by I mean अगर विज्ञान को साथ रख के ये भी एक एक्सरसाइज है, घर में भी अपन चलते फिरते हैं, ये थोड़ा एक्सरसाइज से बॉडी भी अपना अच्छा रहता है। हम लोग भी योगा करते हैं, मैं 15 साल का हूँ, जब से कर रहा हूँ। और रही बात ये कि इन दिस टाइम वी आर फॉलो द वेस्टर्न कल्चर, आई मीन द यंग जनरेशन, लेकिन ऑल वर्ल्ड फॉलो आवर कल्चर एंड रिलीजन। तो हमें भी अपने रिलीजन पे इतना फेथ और अपना थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाए और पद यात्रा का पुण्यम है। अगर पद यात्रा करेंगे एक एक कदम निस्वार्थ निराभिमानी बन के, तो एक कदम का एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है, जो अपने बच्चों के लिए भी अच्छा है। करके हम लोग सोचे चलो पद यात्रा करेंगे और ये पद यात्रा। आपको पद यात्रा करने के लिए आपका फैमिली मेंबर्स मदद किया? मेरा 2 बेटा 1 बेटी है। उनसे हम लोग ने डिस्कशंस किया कि हमें ऐसा पद यात्रा करना है। तो बोले आपकी एज ज़्यादा है और ये वो। फिर एवरीडे हम लोगों को फ़ोन करते हैं बच्चे, आप कैसे कहाँ पहुँचे। बीच में आए थे बच्चे मिलने के लिए, बड़ा बेटा आया, उसके बाद छोटा बेटा आया। बेटी पायलट है तो टाइम नहीं मिल पाता है, छुट्टी नहीं मिलती। और पहले हम लोग कोरोना पीरियड में यात्रा करनी थी, तो हम लोग ने जब स्टार्ट किया और कलेक्टर ने बोला कि आप तो नहीं कर पाओगे, ओल्ड एज है, सीनियर सिटीजन और कंटेनमेंट एरिया जाहिर कर दिया है, तो हम लोग फिर वापस लौट गए। फिर जहाँ से हमने छोड़ दिया यात्रा, वहाँ से अगेन हम लोग ने स्टार्ट किया और अभी पूरी कर रहे हैं। हम लोग रिटायर्ड है तो हमारा पेंशन भी इतना है कि हमें इतना तो खर्चा होता नहीं, एटीएम वगैरह है। बाकी तो रही बात है कि बच्चे चिंता करते हैं कि ओल्ड एज है, अपने एज ज़्यादा है, तो थोड़ा तबीयत संभाल के करना। अभी तो पहुंचने को आया, इतना लंबा नहीं है। और वैसे भी हमें लोग भी बहुत कोऑपरेट हुए और कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे लोग मिले। मुस्लिम परिवार भी हमको अपने घर में भी रोके, खाना भी प्रोवाइड किए, वो लोग भी हमें बहुत कोऑपरेट हुए। यानी सद्भावना है। हमारी सोच, हमें ये विचार आया कि अपने इंडिया में इतने रिलीजन्स हैं लेकिन सब मिलजुल के रह रहे हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट होते हैं। तो वही सबसे बड़ी बात ये है कि सद्भावना जो अपना है ना, अपना जो कल्चर है, यानी अपनी जो संस्कृति, वही सबसे ऊंची है पूरे वर्ल्ड में। और इस वजह से आज अंग्रेज लोग क्या पूरे वर्ल्ड अपना ही कल्चर को अच्छा मान रहे, देख रहे और फॉलो कर रहे हैं। हाँ, ये है अपने यहाँ थोड़ा एजुकेटेड पीपल सभी रन बिहाइंड द मनी, दे फॉरगॉट आवर रिलीजन, कल्चर एटसेट्रा। अभी जो गुजरात से पद यात्रा शुरू किया, उधर से 4 महीना हो गया इधर पहुंचने के लिए। 4 महीना 27 दिन, 4 महीने ऊपर हो गया। हरिद्वार होके आए, गुजरात से हरिद्वार गए, उत्तराखंड, दिल्ली से आगे हिमाचल। ओके, उधर से ऊपर जाके बाद में नीचे आ रहा है। हाँ, वहाँ से गंगा जल लिए और वही गंगा जल से पवित्र गंगा जल, वो जो अपनी पवित्र भूमि है जहाँ महादेव ने तपस्या की थी, पार्वती जी का नेटिव प्लेस हरिद्वार, इसलिए हम लोग वहाँ से फिर गंगा जल लिए। गंगा पवित्र नहीं है, वही गंगा जल से हम अभिषेक रामेश्वरम करें। तो गंगा जल लेके रामेश्वरम गंगा जल में अभिषेक करने के लिए ये पद यात्रा कंप्लीट हो जाता। उधर से क्या करते हैं डायरेक्ट? वहाँ से फिर हम लोग अगर दोनों तरफ चले तो संपूर्ण यात्रा, तो हम लोग भी एक कोशिश करेंगे रिटर्न भी पद यात्रा करें गुजरात तक। तो रिटर्न भी पद यात्रा करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। हाँ, और फिर वहाँ से बच्चों के पास चले जाएंगे इंग्लैंड, क्योंकि अभी मेरे को आँख में थोड़ा ऑपरेशन हुआ। बच्चे लोग किधर है? लंदन में बड़ा बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर है,
छोटा बेटा लंदन से 90 किलोमीटर दूरी पे एक लेस्टर सिटी में कॉमर्शियल बैंक में जनरल मैनेजर छोटा है। बेटा। हाँ, और उससे छोटी है बेटी, वो ब्रिटिश एयरलाइंस में पायलट है। ओके वो भी लंदन में है। लंदन में एक मकान है, एक ल्यूटन में है। तो मेरे को कोई गोद लिया था, मेरी मम्मी की सहेली, वो मेरे को इंग्लैंड ले गई थी बचपन में, 3-3.5 साल की उम्र में। तो मैं वहीं पढ़ाई किया, वो किया। वो मम्मी ने मेरे को, उनको एक बेटी थी और एक मैं बेटा, हम दोनों को आधा आधा प्रॉपर्टी दिया। एक मकान मेरा लेस्टर ल्यूटन में है, एक है लंदन में। तो वहीं हम लोग, तो ल्यूटन गांव है, हमें अच्छा लगता है, थोड़ी खेतीबाड़ी भी है। ये जो केसर की खेती होती है, लेकिन हमने, मेरी मम्मी भी डॉक्टर थी और वो गॉड मदर थी, वो भी डॉक्टर थी, दोनों सहेली थी। मेरी मम्मी अमेरिका में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया था, कैंसर स्पेशलिस्ट थी। और उनकी सहेली, वो जब इंडिया उनको मिलने के लिए आई, तब मैं 3-3.5 साल का था। तो बोले मैं इनको ले जाती हूँ गोद और उनको वहाँ क्वालिटी एजुकेशन दूंगी। तो यहाँ तो डॉक्टर में फ्री नहीं है, टाइम नहीं है, बच्चे का एजुकेशन अच्छा देना है करके मेरे को गोद ले गई। फिर वहीं मेरे को रखा और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो थी वो आधा उनकी बेटी को, आधा मेरे को दिया। और वैसे हम लोग एजुकेशन लेके, फिर मम्मी बीमार हुई करके इंडिया आए। तो इंडिया भी हमने जॉब किया एज ए प्रोफेसर, और इन्होंने एज ए प्रिंसिपल डॉन बॉस्को में। वहाँ लंदन में भी डॉन बॉस्को, जो लंदन ब्रिज पोस्टर है ना, उसके बाजू में मिरेकल क्रॉस, वो टावर के पास में एक कॉलेज है, उसमें ये प्रिंसिपल थी। साइकोलॉजी PhD किया है, वो भी ऑक्सफोर्ड से गोल्ड मेडलिस्ट है। और मैंने ऑक्सफोर्ड से केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में किया PhD, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट। अब गुजरात से आ रहा है, ये पद यात्रा शुरू किया ना, शुरू करने के टाइम पे से कुछ गड़बड़ होया? कोई लोग नहीं, शुरुआत में हम लोग थक जाते थे और पैर में भी छाले गिरे, और इतना पैर इंश्योरेंस हो गया था तो चलने के लिए भी थोड़ा दिक्कत होती थी। फिर एक जगह पे 2 दिन रेस्ट किए, ड्रेसिंग किया, अच्छा हो गया। फिर चप्पल पहने, अब चप्पल पहना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी तो चलने में भी दिक्कत होती थी। शुरुआत में 20-25 दिन दिक्कत हुई, फिर अच्छा हो गया। और वैसे थोड़ा बहुत गड़बड़ तो होता है सब जगह, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे अच्छे भले सब लोग रहते हैं, लेकिन हम लोग पॉजिटिव चीज याद रखते, बाकी भूल जाते हैं। कोई पब्लिक लोग कोई भी तुमको दिक्कत किया? कभी कभी होता है। यहाँ काला पानी समुद्र जो टेम्पल है हनुमान जी, वहाँ हमने रात को पूछा तो वहाँ लोग बैठे थे, बोले रुक जाओ रात। रात हो गई थी, और वहाँ ऐसा जो बैठने के लिए पत्थर बनाते हैं, हम लोग वहाँ बैठे थे। फिर वो जो मंदिर में सफाई वगैरह करने वाला है, पहले आके बोले हे बाहर निकलो, बाहर निकलो। फिर हमने बोला भैया हम लोग को रात रुकना है, पदयात्री है, ये लोग बोले हैं। फिर वो जो कलर का डब्बा छोड़ने के लिए आया था, उन्होंने बोले हाँ, बोले रुक जाओ रुक जाओ। फिर हम लोग बैठे, लेकिन वो भैया लोगों ने टेम्पल को ताला मार दिया। ओके तुमने सोने नहीं दिया उधर? सोने तो नहीं दिया, लेकिन रात भर बारिश आई, पूरी रात परेशान हुए। फिर वहाँ से चल दिए। ऐसा होता है कभी, क्योंकि हर एक की मेंटालिटी तो ये नहीं होती है ना, कोई पॉजिटिव सोचे कोई नेगेटिव। तो भाई ठीक है, जैसे उनकी मर्जी, लेकिन बाकी कहीं पूरी यात्रा में कहीं दिक्कत नहीं है। ओके यही टेम्पल में रात भर हम लोग बारिश पर बैठना पड़ा। अब जो चल रहा है ना यात्रा पे, ये यात्रा पे कहाँ सो रहा है, कहाँ पी रहा है, कैसा है? मंदिर में सोते हैं, और खाना वगैरह है, लेकिन थक जाते तो नहीं बनाते हम लोग। प्योर वेजिटेरियन है तो होटल में से, ढाबा में से पार्सल ले लेते। ओके कभी भी दिक्कत न हो गया तो नहीं बना नहीं सकते तो होटल पे खा सकते हैं लेके आके? अभी तक बनाया नहीं, थक जाते हैं ना, ये भी तो ओल्ड एज है, तो हम होटल से अक्सर पार्सल ले लेते हैं। और मॉर्निंग में इडली डोसा वगैरह मिलता है, तो कभी वो भी ज्यादा लेके रख लेते हैं, दोपहर में खा लेते हैं, शाम को फिर ढाबा आते हैं तो वहीं से पार्सल ले लेते हैं। ऐसा मेंटेन। कोई जो जंगल पे कोई रनिंग में नहीं मिला तो आप उधर ही खुद का बना है को खाते तो फिर ऐसा बना लेते हैं, वहाँ सो जाते हैं। ओके तो मंदिर भी अपना, जंगल भी बड़े बड़े, MP में बहुत बड़ा जंगल पड़ा है। ये जो है ना टाइगर रिजर्व पार्क, वहीं हमको सोना पड़ा था। ओके क्योंकि लंबा हो गया, रात हो गई, 10 बज गया, तो फिर वहीं सो गए थे, एक पेड़ के नीचे सफाई करके वहीं सो गए। तो क्या होता है, बारिश की सीजन में खाना बनाना मुश्किल हो जाता है, नहीं बना पाते। अगर टेम्पल है तो वो लोग बोलते मत बनाओ, आप थक गए, हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो कभी वो प्रसाद के तौर पे ले लेते हैं। समझ। क्या नाम है आपका? R देव उपाध्याय। मैडम का नाम? सरोज राम उपाध्याय। मैडम जी आप क्या बोल लिए थे पहले?
प्रॉब्लम है, हिंदी कम कुछ थोड़ा थोड़ा आता है। ओके ओके बोलिए। जैसे हम लोग यात्रा में हैं तो हम लोग को सभी लोग कोऑपरेट होते हैं और धर्म में ऐसा लगा कि नहीं अभी धर्म है अपना और सभी को हमको सहयोग करते हैं। माँ जी, आपका पति के बारे में कुछ बोल रहे क्या? अभी यात्रा कर रहे हैं क्या? आपका पति बोल रहा है। हुआ क्या होगा? आँख में ऑपरेशन हुआ था तो हमने दुआ मंगा था कि यदि आप ऑपरेशन मंगे हो थे जाएगा- दुआ? हाँ, कि अच्छा हो जाएगा तो हम दोनों पति पत्नी चल के रामेश्वरम जाएंगे, ओके। तिरुमला होके रामेश्वरम। अभी तिरुमला दर्शन होने के बाद में रामेश्वरम पहुंचेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? नहीं कोई, हेल्थ भी अच्छा है, हाँ ओके। प्रभु ने संभाला हमको। हाँ। हाँ, आपका प्रभु ही चला दे रहा है। चलने का है अच्छा, और अच्छा। कोई नहीं। आपका नाम अरे सरोज उपाध्याय, ओके। कितना आदमी लोग, बच्चे लोग? 2 बेटा 1 बेटी। फोन करते रहते हैं? हाँ, और शाम को हमारा हेल्थ के बारे में पूछते हैं, भोजन के बारे में पूछते हैं। अच्छा है, बेटे लोग सब अच्छा है, जॉइंट फैमिली हमारा। వీళ్ళు పాదయాత్ర గుజరాత్ నుండి చెప్పాం కదా, వీళ్ళు చెప్పడం దాంట్లో మనకు కొన్ని విషయాలు కూడా తెలిసిందేమంటే వీళ్ళు ఎక్కడైనా పనుకోవడానికి వసతులు ఉన్నా కూడా అక్కడ పనుకుంటున్నారు. మన ఇండియా వాళ్ళు పీపుల్స్ చాలా మంది కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి కావాల్సిన వీళ్ళు అడగకపోయినా కూడా కొందరు ఎక్కడి నుండి వచ్చారు, ఎందుకు మీరు ఈ పాదయాత్ర చేస్తున్నారు అడిగి తెలుసుకుంటూ వాళ్ళు కూడా రామేశ్వరానికి వెళ్తున్నాం, గుజరాత్ నుండి పాదయాత్ర చేస్తూ వెళ్తున్నాం అన్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఈ వృద్ధ దంపతులు ఈ టైంలో వెళ్తున్నారా అని కనకరించి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు తోచిన సహాయం, పండ్లు కానివ్వండి, టిఫిన్ కానివ్వండి, మధ్యాహ్నం భోజనం సమయంలో ఎక్కడ నిలబెట్టినప్పుడు వాళ్ళు కూడా తోచిన సహాయాన్ని అందిస్తున్నారు. అలాగే వీళ్ళు పనుకునే సమయంలో కొందరు పంపించేస్తున్నారంట. ఎందుకంటే ఎవరు మీరు ఎక్కడని భయపడుతూ పంపించేస్తున్నారంట. అలా ఏమీ లేదు, మేమందరం కొన్ని వీళ్ళు వివరించినాక మళ్ళీ వాళ్ళు అక్కడ పడుకోవడానికి కూడా వసతులు కల్పిస్తున్నారు. మనం కూడా మన దగ్గర రాబోయే ఇప్పుడు వాళ్ళు నల్ల చెరువులో ఉన్నారు, ఇంకా మొలకల చెరువు, తనకల్ మొలకల చెరువు, మదనపల్లి మీదుగా వీళ్ళు తిరుమలకు చేరుకుంటారు. తిరుమల చేరుకునే వాళ్ళు రోజుకి 20 నుండి 25 కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేయబడుతున్నారు. టైం బట్టి 20 నుండి 25 లోపల చేపడుతున్న వీళ్ళు వసతులు కూడా ఎక్కడైనా అరేంజ్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం దావలో వెళ్ళే వాళ్ళం కూడా కొద్దిగా గమనించుకొని వీళ్ళకి మన తోటి సహాయం చేస్తూ వీళ్ళు రామేశ్వరానికి చేరుకోవడానికి కూడా మనం ఆ దేవుని ప్రార్థిద్దాం. ఎందుకంటే వీళ్ళు చేస్తున్న ఈ వృద్ధా దంపతులు చూస్తుంటే 75 ఏళ్ళ వృద్ధా దంపతులు పాదయాత్ర చేయాలంటే చాలా కష్టంతో కూడిన పని. ఎందుకంటే వీళ్ళని చూస్తుంటే ఈ సైకిల్, ట్రాలీతో సహా మనం చూడొచ్చు. ట్రాలీలు మొత్తం దాదాపుగా 200-300 కేజీల బరువున్న ట్రాలీ ఇది. ఈ ట్రాలీని వాళ్ళు స్వయంగా తయారు చేసుకొని వాళ్ళు ఈ పాదయాత్రని మొదలు పెట్టారు. ఇలా పాదయాత్రను కూడా రామేశ్వరం చేరుకుని వాళ్ళు దేవుడు చల్లగా చూడాలని కూడా మనందరం ఆశిద్దాం. జెడ్పీటీసీ నల్లచెరు నాగభూషణ్ అన్న కూడా ఇలా పాదయాత్ర చూసి తోట దగ్గర చూసి గమనించి మనము నడుచుకుంటూ వస్తున్నాం. వీళ్ళు కూడా గమనించి వాళ్ళు పండ్లు అవి అందజేశారు. వాళ్ళు కూడా మనం ధన్యవాదాలు తెలపాలి. ఎందుకంటే ఒక తోటి మనిషికి తోటి సహాయం అనేది చాలా గొప్పతనం. ఈ వృద్ధా దంపతుల పాదయాత్ర విజయవంతంగా ముగించాలని ఆ దేవుణ్ణి మనందరం కోరుకుందాం. కెమెరామెన్ బాబుతో జిలాన్ భాషా, NC లోకల్ న్యూస్.